Assalamualaikum everyone. This is Zulfikar Ali. I'm a researcher and analytics expert at Wizara Talim Ibrahim. This session is continuing on the sessions we had on Usher processes and the server. We conducted every alternate year, starting from 2019 and 2021 onwards. Before that, we conducted the Usher survey every year and we presented the reports and disseminated the findings to different departments, to different organizations, and this happen all across Pakistan. उसके साथ साथ हम असल बैठक भी कराते रहे कम्युनिटी के अंदर ये सारी चीज़ें शेयर करते रहे तो this has been the standard norm of asset dissemination and asset finding sharing the asset findings with the relevant organization and the relevant community and people तो आज का सेशन है डेटा प्री प्रोसेसिंग के हवाले से है डेटा कैसे हम इकट्ठा करते हैं उसके बाद हम डेटा कैसे शेयर करते हैं और उसकी फाइंड कैसे शेयर करते हैं एनालिसिस करते हैं क्योंकि डेटा वैल्यू चेन में हम देखेंगे तो starting from designing of the survey and then on to collecting the data and then on to the uh, mid processes like analysis, find the impact, and then sharing the data to the relevant organizations and टू द रेलिवेंट पीपल तो ये एक डेटा वैल्यू चेन हमारे पास बन जाता है उसको कैसे हम करते हैं तो स्टार्ट में अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ टू whoever इज विविंग दिस सेशन मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे यह सर सर्वे जो है हमारे पास हम किन वेरिएबल्स के against हमारे बेसिक 6 थीम्स बट मोर देन दोज थीम्स हैं जिनके अराउंड हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो अब फॉर एग्जांपल एक्सेस है अब एक्सेस देखते हैं कि कितने परसेंट बच्चे जो है स्कूल्स अटेंड करते हैं दे आर गोइंग टू एनी फॉर्मल स्कूल सेटअप सेटिंग और उसके साथ साथ जो है हम उनके लर्निंग लेवल्स देखते हैं लर्निंग लेवल से प्राइमरी और कोर जो हमारी जिस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं लर्निंग लेवल्स है तो लर्निंग लेवल्स का हम प्रीवियस सेशंस में भी बता चुके हैं कि दिस रिपोर्ट इज ऑन फाउंडेशनल लर्निंग और फाउंडेशनल लर्निंग का फ्रेमवर्क जो है वो क्लास सेकंड के जो कॉम्पिटेंसीज है तो उसके साथ मैप करते हैं एंड सेलेक्टिवली फॉर सम कॉम्पिटेंसीज सम एसएलओज दोज आर डिफाइंड फॉर ग्रेड 3 तो पहले हमने टूल्स बनाए टूल्स भी आपके साथ हमने शेयर किए और उसमें हर टूल में हमारे पास मेजरली लैंग्वेजेस के और उसके साथ एरिथमेटिक के टूल्स है प्लस वी हैव अ टूल फॉर जनरल नॉलेज एज वेल तो अंग्रेजी में हमारे पास जो टूल है उसमें हमारे पास सेट levels. For example, we start from capital letters and then we move the child who was able to meet the benchmarks to the next level, which is of lowercase letters, English letters, and if the child is able to uh, correctly identify, recognize 4 out of 5 letters that he/she chooses to respond to, then we move the child to the next level, which is of words, and the same criteria applies here. Out of 5, he or she has to uh, correctly identify 4 or 5 out of those 5 words, and then we move the child then on to the next level, which is of sentences. Sentence is the highest level uh, on English tool, and the same is true for our our Urdu tool or our Sindhi tool, we have the same set of criteria. For example, on the Urdu tool, we have letter recognition, then we move the child to the words level, and then we move the child to sentences and on to stories. Story is the highest level in on the Urdu tool. So there are around 12 sentences in the
in the Urdu story, and we ask the child some contextual questions from the story, and if he or she was able to answer those questions, we mark the child being able to respond to those contextual questions and this story. Uh, and the child is able to comprehend the story, and we ask the child, we pose the questions to the child, and this also fulfills certain SLOs on the of the NCP, which are on the listening skills. तो ये जो वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल या क्वेश्चंस पूछते हैं, वो वहाँ से बच्चे की लिसनिंग स्किल्स भी जो है उनको मैयर करते हैं। तो ये हमारे टूल्स हैं। टूल्स के साथ साथ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल विलेज के अंदर हम जाते हैं, हमारे विलेज के अंदर जाते हैं, विलेज में कुछ वेरिएबल्स पूछते हैं। फॉर एग्जांपल एज हैज द विलेज I'll show you the some of the variables that we ask from the villages. For example, our enumerators go to the villages and they identify some key prominent people there. For example, they might be the नंबरदार, और या कोई इस जो उस विलेज का कोई टीचर हो, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, मस्जिद का कोई इमाम हो सकता है। तो उनसे ये बात करते हैं। बात करने के बाद खुद कुछ उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस भी होती है, और फिर दे फिल दिस फॉर्म। और जो हमारे पास डेटा आता है, डेटा का हमारे हम जो है प्राइमरीली वी कलेक्ट द डेटा ऑन मोबाइल एप्लीकेशन। वी हैव एन एंड्रॉइड बेस्ड mobile application that you can download from the Google App Store, and also we have an FLN application that is also published on the Google Play Store that you can download, and ये टीचर्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है FLN एप्लीकेशन, जहाँ से वो अपने बच्चों को असेस कर सकते हैं और उनकी असेसमेंट एंड पे वो देख सकते हैं, एंड दे कैन use the same assessment application over different periods of time, and they can assess their child and can see if their children were able to learn, or the period of assessment they conducted at first, and then बाद में जो दोबारा असेसमेंट कर लेते हैं, तो उसमें कोई चेंजिंग है वो ओवर टाइम वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि विलेजेस के अंदर हमारे पास सर्टेन वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल वी आस्क हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दैट स्पेसिफिक इनोवेशन एरिया। तो वी हैव अ स्पेस फॉर 4 languages here, but on the application we have listed all those languages which are prominently spoken across Pakistan। और जितने भी लैंग्वेज है वो यहाँ पे है, एंड देन वी आस्क इफ द विलेज हैज इलेक्ट्रिसिटी connection or facility, or whether the gas is available in that enumeration area, and we ask uh, whether government schools are present, and if government schools are present in that specific enumeration area, and how many schools are there. And then we move on to private schools and madrasa, clinic and maternity centers. So there are a bunch of variables that we get the data for, and this is just about village facilities that we get the data for. And then we move to we conduct the survey in one government school and in one private school, and we collect the data from the heads of the schools, and maybe if the head is not present, then some other regular teacher can also respond to the school questionnaire। And इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बच्चों की अटेंडेंस का डेटा कलेक्ट करते हैं। वी गेट द डेटा फॉर classroom facilities, and we also have a section for facilities for children who are differently abled in that school. For example, we get the data for ramps, accessible toilets, health and nutrition facility, and any assistive devices that the school has been provided by by the government or any other donor agency। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि फंडिंग से रिलेटेड बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसको डिसएग्रीगेट करते हैं ऑन द जेंडर लाइंस, एंड आल्सो वी गेट द डेटा फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर दैट स्पेसिफिक स्कूल।
for those teachers who teach at the schools, and we also get the data for their professional qualifications, if any. For example, you can see over here we have variables for PTC, CT, BEd, MA, and any other qualification that or certification that the teachers of that specific school might possess. And also we have some variables for whether the PTSMC or the parent teacher committee is active, and how many members are there, how many active members are there, and how much amount they have in the bank account in their bank account. And also we get some data against the meetings that take place in those schools between teachers and their parents. And also we get the data for the trainings that the school teachers have taken over the period of 1 year or a period of 6 years. For example, you can see over here that in the last 1 month, how many teachers got teachers training. It could be CPD, or it could be on any of the themes that we've listed down here. These are some of the regular uh, uh, themes of the trainings that take place across Pakistan. And we have also added some of the variables. For example, you can see over here whether the teachers may uh, feel it appropriate, feel the need of training on data literacy, on school leadership, community engagement, or any other thing that they can think of. And also we have some variables for parents teachers meeting, and how often this PTM takes place, and if the teachers follow up upon any school students' absences, and how many absences are allowed. And you can also see over this section on the left that the facilities in the school, we have variables against playground, boundary wall, electricity connection, whether the school has any solar panel, whether the school has gotten any tablets by any agency, or by the government. And also we have some variables against hygiene facilities in the school, and we also have variables for uh, for technology penetration in the school, whether the school has any computer lab, or whether the school has internet connection. If the internet connection is available, whether it is provided to the provided to the students, or whether this internet connection is only limited to computer labs, or it is present only in the offices of teachers. So these are some of the variables that we get the data for from the schools. This is the government school sheet, and it is quite similar for the private schools as well. So we also observe two of the classrooms, and we see whether the schools, whether these classrooms have a blackboard or whiteboard, a workable blackboard or whiteboard, and whether learning takes place whether learning takes place and whether the supplementary material is available. और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मल्टी ग्रेडिंग क्लासरूम को भी यहाँ पे देखते हैं कि whether the students are sitting with any other grade for grade 2 and grade 8. And we also have variables for health and disability. This is a comprehensive survey, and you try to uh, capture the learning levels from every direction, from every single lens. So we have shifted this health and disability section for the ASA 2025 to the households, which for 2023 it was in the school questionnaire, in the school's questionnaire. So we have six functional disabilities, six types of functional disability, whether and we get the data for girls and boys separately. And what was the extent of the difficulty that the child is experiencing. So this helps us an all round exposure of the learning levels, and also to see the learning levels from different dimensions. उसके साथ साथ हमारे पास प्राइवेट स्कूल में ऑलमोस्ट वही सेम चीज़ें हैं. वी मूव टू द हाउस होल्ड सर्वे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हम
चाइल्ड्स के पेरेंटल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उसमें उनका नाम पूछते हैं, और उसके साथ साथ कितने बच्चे हैं, whether the mother is married or widowed, or whether she has attended any school, highest grade completed में हम पूछते हैं कि कौन सा जो हाईएस्ट ग्रेड है कंप्लीट किया है, एंड देन वी मूव ऑन टू फादर इंफॉर्मेशन दिस, और तकरीबन सेम चीज़ें पूछते हैं। और उसके बाद बच्चे की असेसमेंट करते हैं, उसकी बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, whether the child is attending the school or whether he is or she is she has never been enrolled, or whether they have dropped out of schools. So these are some of the background variables that we ask from the child. And also you can see over here what grade the child is currently enrolled in. And also if we find a case where the child is not going to school, or whether he or she has dropped out of school, we try to find out the reasons for dropping out of school. So you can see uh, down here, there's some of the reasons that we felt that these could be some of the major reasons that the child is not sent to the school. For example, in some of the areas in Balochistan and KPK and some of the peripheries of Baltistan, law and order could be one reason that the child is not going to school. uh, it's- because of this, the child is not going to school, and early marriages, and also some negative behavior towards the child in school could be some of those potential caveats. It could be those reasons the child is not going to school. The child is not going to school because of. So these are some of the background variables, and then we conduct the assessment from every 5 to 16 year olds. You can see over here we get the background information for every child who is between the ages of 3 to 16, but assessment is only conducted on a child who is between 5 to 16, uh, who falls in the 5 to 16 age bracket. And so we as I have already mentioned, that we do have the language tool in Urdu and Sindhi. We had a tool in Pashto as well, but Pashto is uh, 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 not the medium of instruction anymore. So that is why we only have Sindhi and Urdu. So we ask the child again. Uh, जिस तरह पहले मैंने बता दिया कि जो हमारे लेवल्स होते हैं, जहाँ पे वो फॉल करता है या करती है, वी मार्क ओवर हियर इस बुकलेट में। लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन है, आई शो यू द डैशबोर्ड एज वेल। तो वहाँ पे भी हम सारी चीज़ें मार्क कर देते हैं। तो तीन और चार जो हमारे मेजर टूल्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, न्यूमरेसी एंड जनरल नॉलेज, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। और उसके साथ साथ स्कूल सर्वे अलग होता है। और जिस तरह हमने असर, जो एक साइकिल है, उसके अंदर जो भी स्टेप्स होते हैं वो आपको पहले हम बता चुके हैं कि हम ये टूल्स डेवलपमेंट पे या टूल वर्कशॉप पे काम करते हैं। देन वी incorporate all those findings and all those feedbacks from the subject experts, and then incorporate them to the tools, and also get their feedback and suggestions on the household and government private school sheets। उन सबको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और उसको फाइनली हम जो है शीट्स उनके साथ शेयर कर देते हैं। और वी ऑल्सो making sure that these changes are reflected in the application as well, so that when we go to the field and get the data, we have the right data and they have the right variables captured. So उसके साथ साथ आप हाउस होल्ड के अंदर और काफ़ी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल वी get the information on social safety nets, and we've listed some of those the social safety nets which are prevalent in across Pakistan. Best is prevalent in Sindh. Punjab Social Protection Authority, PSPA, is also provided to people in Punjab, and also Baitul Mal, Akuvat, and any other source. For example, the और यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि इस वेरिएबल में इंटरेस्ट फ्री लोन भी वो किसी अपने रिश्तेदार से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अदर वाला कॉलम दे दिया है, और उसमें वो इंडिकेट कर सकते हैं कि whether they have gotten any interest-free loan, or whether been provided any social safety net from the government or any other organization.
और उसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज के अराउंड जो हमारे कुछ वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल हम पिछले असर की बात करें, 2023 में बहुत सारी जगहों पे फ्लड्स आए थे जिनकी वजह से स्कूल डैमेज हो गए, जिनकी वजह से स्कूलिंग जो है बच्चों की ओवरऑल इम्पैक्ट हो गई। उस चीज़ को भी कैप्चर करते हैं। ऑल्सो वी ट्राई टू we ask the households whether they are familiar with the concept of climate change, whether they feel their children, whether they are worried about, or whether their psychological well-being has been affected due to climate change. तो वो सारी चीज़ें भी उसके बाद finally we have uh, some variables on the child's health and whether they enumerate how would the enumerator describe the child's health in general. For example, if we place some of the options here, whether by looking at the child, whether the enumerator or volunteer feels what the enumerator or volunteer feels about the health of the child, and then we inquire about any health condition the child is facing, and whether the child has been vaccinated against these five essential vaccination. And then we have a final question on whether the child has any record of the vaccination, or whether they have any other cards that indicate that the child has been vaccinated against these basic vaccinations. तो ये हमारे काफ़ी वेरिएबल्स है, कुल मिला के कोई 237 होते हैं। उनको हम कम करने की भी कोशिश करते हैं ईयर ऑन ईयर। और उसको अगर जहाँ पे हमें फील हो कि इसमें और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो वी आर ओपन टू द सजेशंस ऑफ एनीवन, और वो सारी चीज़ें हम कर देते हैं। तो उसके साथ साथ जब हमारे पास डेटा आ जाता है, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कैसे वो डेटा हमारे पास आ जाता है, और हम उसकी कैसे जो है उसकी एनालिसिस कैसे कर लेते हैं। आपको एक रिपोर्ट में दिखा देता हूँ कि ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल्स के बाद ये आप चाइल्ड डेटा हमारे पास इस तरह आ जाता है कि एप्लीकेशन के साथ साथ हमने एक डैशबोर्ड भी बनाया हुआ है। डैशबोर्ड में ये आप फॉर एग्जांपल जब हम सर्वे जो है कंडक्ट करते हैं, सर्वे जब कंडक्ट करते हैं उसमें अ, कैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रेनिंग कराते हैं इन प्रोविंसेस, और वहाँ से जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स होते हैं, मास्टर ट्रेनर्स जाते हैं। मास्टर ट्रेनर्स जाने के बाद फिर वो मास्टर ट्रेनर्स आगे जाते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के फौरन बाद जो है वो हम ट्रेनिंग 3 दिन की ट्रेनिंग करा देती है। और उस ट्रेनिंग में जो है अ, और उस ट्रेनिंग में मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। वो ट्रेनिंग करा देते हैं और आगे जाके विलेजेस या जो इनमरेशन एरियाज है वो असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर असर 2025 we will be going to some 6,500 villages or enumeration areas, or we will be surveying 133 के households। तो हर एक घर से तकरीबन जो है हमारे पास तकरीबन हमारे पास बच्चे आ जाते हैं। अराउंड 300 के करीब जो है बच्चों को हम असेस करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह एक प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब भी हम डेटा शेयर करते हैं वहाँ पे हम इसको अनोनिमस करते हैं। यहाँ पे हमारे मदर एंड चाइल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ से हम बता देते हैं। ये हमारे पास एक सर्वे था, हमने कंडक्ट करवाया है, असर अर्बन करवाया है। तो असर अर्बन के अंदर कुछ वेरिएबल्स आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोविंसेस देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और उसके बाद विलेज नाम हमारे पास आ जाता है। और चाइल्ड जो विलेज कोड है, और चाइल्ड की एज है, जेंडर क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, वो सारे वेरिएबल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो इसको पहले सबसे पहले हम जो है इसको क्लीन करते हैं। डेटा को क्लीन करने के बाद फिर उसकी जो है ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। अच्छा, मैं रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ कि रिपोर्ट हमारी कैसे बनती है। दिस रिपोर्ट इज नॉट अबाउट is primarily about inferential statistics. For example, हम इसके अंदर से ये this is a sample based survey and we get the data uh,
around in 133 k households, which is a huge data. और उसके बाद जो है, अगर 3 लाख के करीब बच्चों की हम असेसमेंट करते हैं तो ये बहुत बड़ा डेटा होता है, और उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स ही कहते हैं, क्योंकि यू get some of the things, for example, out of this data. For example, we comment on the access, or for example, if 95 96% of the children, this is an urban survey, और 96% के करीब बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, दो schools may be private मदरसा, और दो schools could be गवर्नमेंट schools, तो उसके अंदर से ये सारी चीज़ें निकालते हैं। तो ये सारा आप देख सकते हैं कि इस तरह हम चीज़ें निकाल लेते हैं। इसमें इनरोलमेंट बाई जेंडर भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में क्या है। उसके बाद जो है क्लास वाइज इनरोलमेंट भी हम कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम if we had 30 if we had 13 children at the onset of grade 1, and over the period of 10 years those 13 students are reduced to only 6 students। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि रिटेंशन का हमें अंदाजा होता है कि 5वीं ग्रेड तक जाके ये तकरीबन 13 बच्चे ही थे। और उसके साथ 6ठी ग्रेड में आप देख सकते हैं अक्सर ये मसले आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल विलेजेस में स्कूल्स नहीं होते हैं, जिसमें बच्चे if they reach to grade 5, and then then moving on to the next grade, the number reduces here। यहाँ से ये पता चल जाता है कि स्कूल्स के ना होने की वजह से this could be one of the reasons। Yeah, there might be some other reasons. For example, the parents might not feel it to send their children to schools. So this could be one of the reasons. But what I am commenting on here is schools के ना होने की वजह सप्लाई साइड से भी काफी मसले आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये नंबर रिड्यूस होता है, and it reaches to only 6 students over a period of 10 to 11 years when the child starts in grade 1 and then reaches grade 10। तो वो यहाँ पे तो पता चल जाता है। यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से हम जो है एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अर्ली ग्रेड्स के ऊपर भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें प्री स्कूल या प्री प्राइमरी जो ग्रेड्स हैं उसमें हम देखते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया था कि 3 से 16 ईयर्स के बच्चों का हम जो है उनकी असेसमेंट नहीं करते। बाकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, वेदर दे आर अटेंडिंग एनी प्री प्राइमरी स्कूल्स, वेदर दे और कुछ जो काफ़ी बैकग्राउंड वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ someone is sending their child to a primary school, whether that is a private entity or whether early education is provided by the government, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हम निकाल देते हैं। एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ। यू कैन सी ओवर हियर उनकी जो एज 3 एज 4 और एज 5 में क्या प्राइमरी ग्रेड जो है अटेंडिंग एनी प्री प्राइमरी स्कूल्स, ये परसेंटेज आप देख सकते हैं कि एज 3 में क्या है, एज 4 में क्या है, एंड एज 5 में क्या है। और इसके साथ साथ आप ग्रेड एज टू ग्रेड वाइज आप उनकी कॉम्पोजिशन देख सकते हैं। एक्सेस है ये भी एजुकेशन का। इसमें लर्निंग लेवल्स हम दिखा देते हैं कि वो अंग्रेजी में कहाँ पे लाई करते हैं कि वी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी हैव सर्टेन सेट ऑफ levels defined for every single tool, and we try to find the percentage of children who who fall in that certain on that certain level। तो वो चीज़ें भी है। उसके साथ साथ बाई जेंडर उसको डिसएग्रीगेट करते हैं, और वो भी हम दिखा देती स्टेट, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू शो द स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो उसमें स्टेटस क्या है और कुछ अदर स्टेटिस्टिक्स हैं जो हम शो करते हैं। लर्निंग लेवल्स इंग्लिश में भी ऐसे ही है। लर्निंग लेवल्स ऑन द अरिथमेटिक टूल, और अरिथमेटिक के हमारे फॉर एग्जांपल नथिंग लेवल वो हो जाएगा जो कि बच्चे को कुछ नहीं आता। या ये कि फॉर एग्जांपल we start from asking single digit number if the child is not able to recognize at least 4 out of 5 single digit numbers, then the child is marked at the nothing or beginners level। तो वो पूरा का पूरा उसको ना भी आ सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि द चाइल्ड would not read or identify at least 4 letters, 4 single digit numbers, तो वो नथिंग या बिगिनर्स लेवल पे फॉल करता है। द हाईएस्ट लेवल ओवर इज डिवीजन, which is a 2 digit division question, and if the child was able to pick
any one of the question out of four we that was shown to the child and solve the question correctly, then the child is able to do divisions. So वो highest level है जहाँ पे मार्क करते हैं और उसके बाद स्कूल टाइप वाइज भी हम उसकी स्टेटिस्टिक्स दिखा देते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे हाउस होल्ड की जो वेरिएबल्स है उनके अगेंस्ट जो हम डेटा दिखा देते हैं। पेरेंटल एजुकेशन है, इधर आप देख सकते हो फादर्स की क्या है, मदर्स की क्या है, कंपैरेटिव स्टेटिस्टिक्स दिखाते हैं। We try to show what have the trends been for the last three ASR cycles, and then we also comment on the child attending any paid tuition। और भी वेरिएबल्स है हाउस होल्ड के अंदर। आप देख सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का उस टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन क्या है क्लाइमेट चेंज के अराउंड है। as I've already shown you, whether they with the households are informed of climate change, whether they have access to any social safety net, and whether they have been impacted or the family has been impacted by any natural disaster within the last 1 year or a couple of years। और उसके अलावा जो है तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर हम डेटा उसकी एनालिसिस करते हैं और जो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, नाउ वी मूव टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ असर साइकिल, जिसमें हम डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया है, वेरिएबल्स भी आपको दिखा दिए है, और उसके साथ हम क्या करते हैं कि डेटा के एनालिसिस करते हैं। आई विल शो यू सम ऑफ द graphs that we produce for these reports और डाटा जैसे हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर, मैं एक्सेल में ही कर देता हूँ फॉर द ease and for better understanding of people who are not familiar with advanced analytics tools। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेंडर वाइज जो चीज़ें हैं, बच्चे की एज क्या है। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं, हम यहाँ पे तीन चार चीज़ें देखेंगे, तीन चार वेरिएबल्स देखेंगे और लर्निंग के ऊपर जो है ना हम फोकस करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी ऐसे हैं कि नल भी है और तकरीबन यहाँ पे लिस्ट हमने किया हुआ है 0 से लेके 18 तक। स्कूल ड्रॉप आउट रीजंस, तो हमारे पास जो मैनुअल है, मैं मैनुअल भी आपको दिखा देता हूँ। कोडिंग मैनुअल हम जब डेटा शेयर करते हैं विद ऑर्गेनाइजेशन और विद इंडिविजुअल शेयर द मैनुअल्स विद देम एज वेल। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल एवरी सिंगल वेरिएबल वी हैव डिफाइंड enumerations, और उस enumeration के क्या मतलब, फॉर एग्जांपल if the school has any government or government dispensary available, then we mark one for yes and zero for no। तो ये सारी चीजें हमें डेटा के अंदर मिल जाती है। तो ये हमारे पास चाइल्ड डेटा है। और यहाँ पे जेंडर का कॉलम है। जेंडर का कॉलम मतलब 0 1 2 का मतलब, 0 का मतलब है कि मेल है और 1 का मतलब फीमेल है। और जो बाकी जो 2 है, 2 हमारे पास है एनी अदर जेंडर या अदर का कॉलम जो हमारे पास होता है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हम कुछ चीज़ें ठीक कर देते हैं। ब्लैंक्स हमारे पास कितने हैं, बहुत सारा डेटा ऐसा है कि जहाँ पे हमारे पास इसको हम ऊपर रख लेते हैं। तकरीबन कुछ ऐसे भी केसेस हमारे पास होते हैं जहाँ पे मिसिंग होता है, डेटा जब मिस होता है तो उसको हम जेंडर वाला कॉलम आप देख सकते हैं कि उसके नाम जो था, पहले मैं जहाँ से दो कॉलम्स यहाँ से उड़ा दिए थे just to keep this anonymous because we are live on Facebook and we will be sharing this recording with uh, we will be sharing this recording on our website as well. So that is why I deleted uh, these two columns indicating the name of the child and their parental information। तो ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इन द जेंडर कॉलम दैट I have already mentioned with you, we will remove these blank columns from here। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। Let's just wait for this to get processed and then we will change the gender from these enumeration to the real indicators। For example,
जीरो को हमने क्या कहा था, मेल है, इसको हम मेल कर दें। ये एनालिसिस हम कर रहे हैं। देयर इज वाई वी हैव द डेटा फॉर अराउंड 100K children here. So this is indicative, a representative of the rural areas of Pakistan, specifically in the four uh, provinces. We do not, we have not collected the data for a ASER 2023 urban cycle in GB and AJK and GB and AJK. So let's just wait for this to get processed, and then we will try to create some analysis, add some graphs for the learning levels that the children are on. Time lag रहा है, so sorry for that, because this is a huge set of data and it takes a little bit of our time. तब तक मैं इनोवेशन के हवाले से कुछ और बात भी कर देता हूँ। जिस तरह पहले मैंने बता दिया कि हमने ये जो कैप कोडिंग मैनुअल है, इट इज़ फॉर 2021, और मैं आपके साथ 2023 वाला भी शेयर कर देता हूँ। ये हमारे कोडिंग मैनुअल्स है ऑन द इन द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल फॉर जेंडर भी, जेंडर के लिए हमें मेल और फीमेल ही रखा हुआ है। और उसके साथ साथ जो है जेंडर ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल एंड थ्री फॉर जो अदर जेंडर के लिए। लेकिन ये है कि एप्लीकेशन में जिस तरह हमारे पास डेटा है, इट इज जीरो, 0 फॉर मेल, 1 फॉर फीमेल एंड 2 फॉर एनी अदर जेंडर। ये 2023 का अकॉर्डिंग जनरल जो कि हम अपने पार्टनर्स के साथ, जिनके साथ हम डेटा शेयर करते हैं, उनके साथ शेयर कर देते हैं। आप देख सकते हैं टाइप ऑफ ईयर है, ये ईयर ऑफ द सर्वे है, टाइप ऑफ प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, whether the survey is a rural one or whether that is an urban one, and we provide a map for the village or enumeration area that the survey is conducted in. And also we get the information for the population, total number of households in that area, and basic information का जिस तरह मैंने बता दिया, yes or no वाले सारे सवाल है। और इनमें वन और जीरो इंडिकेट करता है, वन इंडिकेट्स यस एंड जीरो इंडिकेट्स नो। और क्लास, फ्रॉम विच क्लास टू क्लास, आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, और जिसमें मल्टीपल ग्रेड्स हैं हमारे पास। एंड देन वी हैव फॉर एग्जांपल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंग्लिश के लिए 1 है, 2 है, सिंधी के लिए और अदर्स के लिए। और इसी तरह और भी वेरिएबल्स है यस और नो के अलावा, जिसमें डिसेबिलिटी का सिंपल है, जिस तरह मेल कितने, क्योंकि हमने नंबर प्रोवाइड करना है। तो जिस for this variable we write number of children uh, who have that sort of disability, and indicate what was the extent of their disability। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इंटरनेट की बेसिक अवेलेबिलिटी, ये सारे यस और नो वाले क्वेश्चन है। बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। आई एम ट्राइंग टू मीटिंग है तो लिखा है ना कि आपका सेक्शन रिप्रेजेंटेटिव कौन है नेशनल लेवल पे। इसके बाद तो वो अलिफ लैला है। अलिफ लैला तो आईटी है। अलिफ लैला आईटी है। नहीं की जानने वाली है। लिख दो अलिफ लैला मेंबर है, उसको हम बिल्कुल बनने जा रहे हैं। अगर आप नहीं है मुझे देखने बेला इज ऑल्सो नॉट क्लियर। उन्होंने मुझे कहा कि हमें मेंबर बनना है, और मैंने अलिफ लैला करके देखा है कि वो तो क्लोज कर देते हैं क्योंकि टाइम लगा रहा है। वी कैन ओपन द अदर फाइल दैट हैव। इसीलिए हम जो है या तो अपने एनालिसिस के लिए स्टेटा यूज करते हैं या आर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे ये मसले नहीं आते। फॉर एग्जांपल इफ यू डेटा फॉर
इफ यू हैव डेटा फॉर एग्जांपल काफी जो ज्यादा नंबर हुआ, इस पे काम करते क्योंकि उसमें ज्यादा लोग थे। इसमें तकरीबन हमारे पास 700 800 के करीब जो है वो बच्चे हैं। इनको सबसे पहले हम हटा देते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों की एज वाला वेरिएट ये हमारे पास है। हम जो लर्निंग लेवल्स जो है लर्निंग लेवल्स देख रहे होते हैं तो वो हमारे पास 5 to 16 है। तो बाकी ये सारे जो इंडिकेटर्स है, आप ये कुछ नॉर्मलीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। नॉर्मलीज को हम पहले देखते हैं कि क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल क्यों ये नॉर्मलीज है। तो इन बच्चों की अगर ये फॉर एग्जांपल सीएलपी कैंप है, ये हमारा कुछ डेटा क्लीनिंग में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ द चाइल्ड इज इन दिस सीएलपी सेंटर, क्योंकि ये हमारा जिस टाइप का डेटा था, तो उसमें सीएलपी मतलब हम जो छोटे बच्चे ही होते हैं जिनकी उम्र जो है वो 11 लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 11 को उन्होंने 111 लिखा है, दिस कुड बी 9। और एक और तरीका ये है कि हम जो जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास अ, उन सबको हम क्या करते हैं, उन सबको हम देखते हैं कि क्या नंबर हो सकता है। दिस कुड बी 5, बिकॉज आगे देखें कि प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में बच्चा जो है 35 ईयर्स का तो नहीं हो सकता। अब ये जो है हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो ये इसमें 18 साल का बच्चा हो सकता है। इसको हम हटा ही देते हैं क्योंकि हमारे इस एज ब्रैकेट में फोन नहीं होता है, और ये हमें नहीं चाहिए। तो ये कुछ छोटी सी एनालिसिस के लिए आप देख सकते हैं। अब जो है हमें 3 4 साल वाले बच्चे भी नहीं चाहिए, तो हम इनको क्या करेंगे, ऑल टुगेदर इनको रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद ये वाला कॉलम हमें नहीं चाहिए, इसको ऐसे ही रिमूव होता है। जेंडर आप देख सकते हैं, मेल और फीमेल है। उसके बाद ये जो चीज़ें रेफ्यूजी स्टेटस है, ये हमें नहीं चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए, मोस्टली हमारे ये जो चीज़ें इंडिकेटर्स हैं, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इन्वर्टर नाम, टीचर नेम, इन सारे इनको रिमूव कर देते हैं। स्कूल का क्या लेवल था, प्राइमरी स्कूल था, स्कूल की कैटेगरी है। तो अब देखिए कि मोस्टली हमें जो वेरिएबल्स चाहिए, बेसिक रीडिंग, इसमें कुछ नहीं है। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये उर्दू में हमने कंडक्ट करवा दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो बच्चे किस लेवल पे लाइक करें, बिगिनर है ना, लेटेस्ट लेवल पे है, सेंटेंसेस लेवल पे, स्टोरी लेवल पे या वर्ड्स लेवल पे। ये उर्दू में है, इसके सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस है, इनको भी फिलहाल के लिए हम अपने एनालिसिस को भी पार्ट नहीं बनाएंगे, इसको हम हटा देते हैं। अरिथमेटिक में आप देख सकते हैं जिस तरह हमने डिवीजन आपको बता दिया कि नंबर के रिलेशन से लेकर डिवीजन तक ये सारे इंग्लिश वाला ये भी ब्लैंक वाला कॉलम है, इसको हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी हमारे पास कोई अनोमली नहीं है। अब देखें कि ये जनरल नॉलेज का पार्ट है, और इसमें हम फॉर एग्जांपल डज द चाइल्ड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, फॉर एग्जांपल। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे से हमने अंग्रेजी वाले पूछे, अगर वर्ड्स लेवल पे है, वर्ड्स लेवल पे या तो यहाँ पे यस होना चाहिए या नो होना चाहिए। वर्ड्स के बाद हम सेंटेंसेस भी पूछते हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि अब सेंटेंसेस पे चले जाते हैं। सेंटेंसेस में जाने के बाद इसमें देखें कि यस और नो होना चाहिए, इसमें कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास डेटा हमारे पास मतलब ठीक है, सही तरीके से आ जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड है तो ये मसले ज़्यादा नहीं होते। रियल टाइम पे हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर देते हैं, रियल टाइम पे हमें चीज़ों का पता भी चल जाता है कि कहाँ पे जो है कोई हमें मसला हो सकता है। दैट इज व्हाई एप्लीकेशन और डिजिटल मीन्स are the go-to places for collecting data correctly and also in a timely, real-time manner. तो ये चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इसको बाकियों को रहने दें। हम सिर्फ जेंडर वाइज एक दो ग्राफ्स बनाएंगे जिसमें हम की जो रूडिमेंट्री एनालिसिस करते हैं, सबसे पिवट टेबल्स हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल सारा पिवट टेबल हमने बना दिया। उसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें जेंडर चाहिए इस उसमें। और उसके बाद हम देखना चाहते हैं नेशनैलिटी ऑफ द चाइल्ड भी नहीं चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 4 डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट पुटिंग दिस डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल इन द फिल्टर सेक्शन। और हमें अरिथमेटिक का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, उर्दू का चाहिए। सबसे पहले हम रीडिंग कर देते हैं। रीडिंग इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द उर्दू टूल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप उसमें हमने रखा हुआ है, और उसके बाद हम इसको वैल्यूज में रख देते हैं। अब ये काउंट ऑफ वैल्यूज है, काउंट ऑफ वैल्यूज ही होनी चाहिए। बिगिनर्स में कितने हैं हमारे पास, देन वी
आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समराइज में जाके काउंट या और कुछ भी करना चाहते हैं। अब हमने किया है कि यहाँ पे आप देख लें कि रीडिंग लेवल्स पे कितने हैं और बाकी लेवल्स पे कितने। इसको हम यहाँ से अगर राइट क्लिक कर दें और वैल्यूज को हम जो है कॉलम टोटल का या ग्रेड टोटल का परसेंटेज परसेंटेज उसको कर देते, परसेंट ऑफ ग्रेड टोटल करेंगे तो मतलब आउट ऑफ दिस 100 हाउ मेनी चिल्ड्रन फॉल इन द बिगिनर्स और नथिंग कैटेगरी, और द सेम गोज फॉर एवरी सिंगल कैटेगरी हियर। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख लें कि ये बेसिक उर्दू रीडिंग है। उर्दू रीडिंग में तकरीबन 4% बच्चे जो है बिगिनर्स लेवल पे, एंड देन वी हैव द हाईएस्ट लेवल विच इज सेंटेंसेस। और यहाँ पे अच्छा, इसकी हम थोड़ी रीऑर्डरिंग कर देते हैं। लेटर्स के बाद हमारे पास सेंटेंस, लेटर्स के बाद वर्ड्स आ जाते हैं। इसको आप यहाँ से इस तरह थोड़ा हाईलाइट करके उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव पुट द वर्ड्स बिलो लेटर्स लेवल एंड sentences comes next and then on to the highest level which is story level on the Urdu tool। फिर हमारे पास एक ग्राफ बन गया। इफ और इसी तरह हम क्या करेंगे, और इसी को हम चेंज कर देते हैं। इसको दोबारा एक और पिवट टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। अभी हमने क्या करना है, उसी एग्जिस्टिंग इसी शीट में ही कर देते हैं, इसके नीचे ही कर देते हैं। हमने यहाँ पर भी सेम वेरिएबल्स रखने हैं, जेंडर को इधर ही रख देते हैं, देन वी पुट द डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल इन द फिल्टर्स टेबल एज वेल। और यहाँ पे अब अगला जो है अरिथमेटिक का, अरिथमेटिक को हम रखेंगे वैल्यूज में और उसमें दोनों में। अब यहाँ पे अगेन देख सकते हैं ये काउंट ही आ रहा है, इसको हम वही कर देते हैं ग्रैंड टोटल की समराइज करते हैं। अब ये जो तीन जो है इनको टॉप पे मैं रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक एक करके इसको सबसे ऊपर मैं रखूंगा। सबसे ऊपर मैंने रख दिया। उसके बाद जो है 2 डिजिट नंबर्स हैं, और इसी तरह 3 डिजिट नंबर्स उसके बाद आते हैं। इनको थोड़ी इसकी सिक्वेंसिंग कर रहे हैं। देन वी हैव सॉरी, आई नीड टू पुट दिस बिफोर सिंगल नंबर रिकग्निशन। और अब इसकी ऑर्डरिंग ठीक हो गई है। अब ये सारी चीज़ें आ गई एंड वी हैव फाइनली द पिवट टेबल फॉर एग्जिस्टिंग में ही कर दें, इसी शीट के अंदर ही कर देते हैं। और इंग्लिश एज वेल आप दोबारा जेंडर को इधर रख दें। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पर कर देते हैं एंड देन वी कीप द इंग्लिश varying variable in the rows and also in the values column and the values field as well। यहाँ से आप दोबारा इसकी समराइज काउंट तो ऑलरेडी हो चुका है, ग्रैंड टोटल कर देते हैं। and we have beginners 5% beginners and 15% recognized capital letters, and then we have this category before sentences. Sentences are highest category, so that is why I'm putting at the bottom over here। So ये हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स हैं यही है। इनके ऊपर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इनको शो करते हैं, डिफरेंट उसकी डिसएग्रीगेशन करते हैं। वी सी दिस थ्रू जनरल लेंस, वी सी दिस थ्रू डिफरेंट डेमोग्राफिक्स वेरिएबल्स। तो हम अभी फॉर एग्जांपल इन सबको एक तीन हमारे पास हो गए, इनके लिए अगर यहाँ से कोई स्लाइसर्स ले आए जो कि इन सबको जोड़ दें। फॉर एग्जांपल ऑन क्लिकिंग one district that also takes us to, for example, if I click on a single district, then these numbers should change accordingly. And also, if I uh, if if I click on any gender, then these should be indicated in the numbers as well। So यहाँ से हम इनको क्या करते हैं, रिपोर्ट कर देंगे, कनेक्शंस इनके साथ सबके साथ जोड़ देते हैं तीनों टेबल्स के साथ, पिवट टेबल्स के साथ। यहाँ पर मेरे स्लाइसर जो है अभी कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इनके ग्राफ्स बना देते हैं ताकि वो उसके ऊपर भी शो हो। तो अब ये ही आप देख लें कि इसको अगर यहाँ से इधर इसके अंदर से ही हम ग्राफ बना देते हैं। मोस्टली यही होता है कि इसमें हम इसका स्केल चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम 0 इसको 1 रख दें तो ये हमारे पास क्या 100 तक जाएगा। और उसके बाद जो एक्सेस इन इनको ऐसे ही कर देंगे।
अब यहाँ पे जो नंबर जो हैं इनको हम क्या कर देते हैं, इनके जो डेसिमल प्लेसेस चेंज कर देते हैं ताकि सिंगल और राउंडेड या राउंडेड डाउन नंबर हमारे पास आ जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए उस चार्ट के ऊपर भी। आप यहाँ से चार्ट का ये कुछ चीज़ें इसके ऊपर है ना, इनको डिलीट कर सकते हैं। इसको आप हाइड कर देते हैं, वैल्यू की और हाइड कर दो। तो ये हमारे पास इसका हमें ये नहीं चाहिए, टोटल नहीं चाहिए। ये हमारे पास था उर्दू रीडिंग लेवल। ये उर्दू रीडिंग कर देते हैं इसको। इसमें अब जो ग्रेड लाइन्स हैं उनको हटा देते हैं, और उसके बाद इनके लेवल्स हम रख देते हैं। इनकी थोड़ी बेसिक चेंजेस कर देते हैं, इनको बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, और नीचे में ये इनको डी से बोल्ड कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो ये उर्दू रीडिंग के जो ग्राफ्स थे, उर्दू रीडिंग में इतने बच्चे परसेंट चिल्ड्रन जो है वो उर्दू रीडिंग कर सकते हैं। इसी ग्राफ को हम अगर यहाँ से कॉपी कर देते हैं, कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी कर दें, कंट्रोल वी, और अभी इनको हम क्या करेंगे, दिस इज फॉर, इसके ऊपर एरिथमेटिक में रख देता हूँ, उर्दू रीडिंग की जगह एरिथमेटिक कर देता हूँ इसमें। एंड देन वी try to take this over here, and I'll try English reading in the title of this graph as well. तो अब जो है हम आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक इंग्लिश और ये हमारे पास आ गए। इसको इस पे डेटा जो है इसका सेलेक्ट कर देते हैं, अरिथमेटिक में जाके आप डेटा यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट डेटा कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक मसला है। इसमें मसला ये है कि पिवट टेबल्स में यहाँ पे ये डेटा डायरेक्टली हम यहाँ से उठा नहीं सकते। दैट इज व्हाई जस्ट वी नीड टू कंट्रोल सी कर देते हैं, इसके वैसे ही रहने लगते हैं, और हमें दोबारा से ग्राफ अलग अलग से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पिवट टेबल से ये उठा नहीं रहे हैं। कॉपी करने के बाद फौरन बाद वो नहीं आ रहा। दोबारा इसी को आप सेलेक्ट कर दें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ग्राफ ले आ सकते हैं गेम, और इसको हटा देते हैं। और जितने इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, एक उसके ऊपर क्लिक करें किसी फील्ड के ऊपर, इसकी मैंने ऊपर फील्ड पे क्लिक किया और सारे जो फील्ड के बटन जितने भी हैं, उन सबको मैंने हाइड कर दिया। अगेन यू कैन go over here and so remove the grid lines, you can add the data labels, you can work around with numbers here, you can change the color, you can change the font size, and this is for numeracy। न्यूमेरसी यहाँ पर लिख देते हैं, न्यूमेरसी लेवल्स कर दें, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसका भी साइज कर देते हैं। अब इनमें थोड़ी चीज़ें ऐसी है कि इनको वर्टिकल रखना है, जैसे करना है फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कि इधर वर्टिकल में अगर रख देता हूँ थोड़ा मसला होता है। इसको मैं टेक्स्ट डायरेक्शन को मैं ऐसे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट डायरेक्शन को ऐसे कर देते हैं, या इसको एक मिनट, टेक्स्ट डायरेक्शन को रहने देते हैं, टेक्स्ट में तो वही होता है। तो यहाँ से ये वाला मैं रख लेता हूँ। वो थोड़ा नीचे खींच लेते ताकि हमें सही तरीके से नजर आए। तो इसी तरह आप यहाँ से जाके इसको भी चेंज कर सकते हैं। एक और आपको यहाँ पे ग्राफ बना लें। ग्राफ बनाने के बाद इसको भी आप ले आए, नीचे ले आते हैं, और यहाँ से भी इसका स्केल देखें ना, कि यहाँ पे ये स्केल जो है इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते, आप इसको 1 कर देंगे तो आपका स्केल जो है वो 100 तक जाएगा, ताकि सबको हमने स्केल जो है उन सबका सेम रखना है। यहाँ से आप ये हाइड कर दें, देन अगेन चेंज द एक्सेस हियर एज वेल, इसको 1 कर देते हैं। इस टाइटल में इंग्लिश रीडिंग कर देते हैं। We can also hide the grid lines, we can add the data labels, we can hold them, and we can also keep this going also these number boards. I can remove, actually I need to remove this one because I am just uh, keeping this data label on, so I don't need to keep the y एक्सेस ऑन एल्बम यहाँ से हटा देते हैं, ताकि वो मिनिमलिस्टिक हो और जो है आपको सारी चीज़ें आपके नज़र आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल वाला ये जो लेजेंड और लेजेंड मैं रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ से ये एक दूसरे उसमें ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल और ये हमारे जो ग्राफ्स इस तरह आ जाते हैं, इसको थोड़ा और मैं इस तरह चेंज करता हूँ ताकि इसको कवर कर दें। और ऐसे ही कर सकते हैं, इसको छोटा कर दें, इसका डायरेक्शन जो है वो आप सेम रख दें, इस तरह रख दें। ये हमारी सेकंड ग्राफ में इसके बराबर रख देते हैं। And similarly, we can move this up as well, इसको उसके नीचे रख देते हैं और इसमें भी इसका डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं, ताकि सब स्टैंडर्डाइज्ड वो आ जाए। इसको भी ऐसा रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पास 3 ग्राफ्स हो गए। अगर हम यहाँ पे अब हमारे ये जो लेजेंड्स थे इसमें चेंज कर देते हैं, इफ वी वांट टू सी all females on the graph, you can see that highest level पे 16% females है in the Urdu reading and 18% on numeracy, और इसी तरह जो है on the English reading we have 25% females। मेल का देखिए आप, this has reduced from 18 to 13% and this has moved down as well। यहाँ पे आप देख सकते हैं comparatively females have done better। Now also you can also drill down to any district that you want to go to. For example, if I want to see the children, how the children in Shahid did, and I can pick this। And also शहजादा के अंदर देखिए यार, ये हल्के से हमारे पास डैशबोर्ड्स बन गया है, यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ द डेटा इज प्रोसेस्ड in IT, and we are on to building beautiful dashboards using Power BI, and we will create a data repository as well। तो ये हमारा जो डेटा क्लीनिंग से लेके एनालिसिस तक इस तरह ग्राफ्स बन जाते हैं, और उसमें डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आई कैन एड मेल एंड फीमेल्स ऑन अ सिंगल ग्राफ एज वेल। आई कैन show comparative statistics for different years, for different from different lenses, from gender lines, where I can compare two provinces and anything that I want to show on the graph। तो ये सिंपल हमारे है। इनकी कलर्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप सिंपली आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू कीप this color on for Urdu reading, and I keep this color for this mathematics, and I want to change the color uh, for the English section, or for example English के लिए मैं ये color रख देता हूँ, तो you can work around with different options that you have। So this is how the data is pre-processed. This is how the analysis for ASAR is done. This is how we generate the national report for ASAR। तो ये आज का सेशन, we had only 1 hour, and I hope कि आप लोगों को आज के इस सेशन के हवाले से और असर के जो डेटा वैल्यू चेन है उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एनालिसिस वाला पार्ट जो है, उसको समझने में, कैसे ये सर्वे डिज़ाइन होता है उसको समझने में काफ़ी मदद मिली हो। तो वी आर ग्रेटफुल एंड वी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और किसी का अगर
कहीं पे भी सवाल हो तो do let us know, write to us. We will respond to you, and we are grateful. We try to uh, democratize our assessments. We try to make sure that everybody learns about what IIT is doing, what ASAR is all about. और बच्चों के असेसमेंट में हम जो बुनियादी जो एक कलीदी जो किरदार अदा करती है वो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है। हर बच्चे के अंदर ये फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी हो ताकि वो बेहतर मुस्तकबिल की तरफ, बेहतर पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस वर्चुअली टुडे। और जिस किसी के भी कोई क्वेश्चन है, डू लेट अस नाउ, डू राइट टू अस। थैंक यू सो मच। करीम साहब, कोई सवाल तो नहीं है ना आपका? I see that you have joined us. I don't know any other अलहमदुलिल्लाह सर, question. बिल्कुल ज़बरदस्त है, बहुत आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दी। और आई होप कि इंशाल्लाह ये आगे से 2025 का जो असर सर्वे होगा वो ज़बरदस्त रहेगा, और डेटाबेस भी उसकी जो है इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। थैंक यू। जी जी, thank you so much. Any question from anyone who is with us? चलो जी, thank you so much for joining us today.